Praise the Lord. Praise the Lord. How many of you are expecting something great during this next year? कितने लोग कुछ महान ऐसा अपेक्षा कर रहे हैं? All of your hands or no? Somebody's hands are not lifted up. कुछ लोगों का हाथ ऊपर नहीं आया. You expect great things from God. आप परमेश्वर से महान बातें अपेक्षा करते हो? 2026 will be a fruitful year. 2026 एक फलवंत वर्ष होने वाला है. Yeah, all these years what you have struggled, God is going to transform that और into. इतने वर्षों से हम जितने जूझ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, परमेश्वर वो सबको बदलने वाला है. So you expect great things from God. तो बड़ी बातें, महान बातें परमेश्वर से अपेक्षा करें. What you expect, you will get. जो आप अपेक्षा करोगे वही आप पाओगे. So joy and prosperity, आनंद, उन्नति, peace शांति and mercy of God to और us. परमेश्वर की दया हमारे ऊपर. So may God give you all that. तो परमेश्वर हमें ये सब बातें दे. So that's what I wanted to talk about this morning. तो यही बात मैं आज के सुबह आपसे बात करना चाहता Thank हूँ. you for praying. Some of you are praying for us. Thank you for कुछ that. लोग हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद. Yeah, we too went through a time of. I was here in November, I believe, but then did I come for Sunday? Or only the day of conference? Okay. तो हम नवंबर में यहाँ पर आए थे और So फिर लौटे हैं. turn to the book of Revelation. आइए हम प्रकाशित वाक्य की किताब की ओर जाए. When I think about the book of Revelation, I get scared जब मैं प्रकाशित वाक्य की किताब के बारे में सोचता हूँ, मुझे डर लगता है because I can't understand. क्योंकि मैं नहीं समझ पाता. Yeah, इतना साल हम वापस I am reading this, studying this. I don't understand all. So many things are said. और इतने वर्षों से मैं पढ़ता जा रहा हूँ, लेकिन इतनी बातें हैं कि नहीं समझ आता. But God speaks through His word. पर परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा बातें करते हैं. So let us try and see what He wants to speak to us. तो आइए कोशिश करें कि परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाहता है. The book of Revelation, how is it in Hindi? प्रकाशित वाक्य. Prakashit? प्रकाशित वाक्य. रेवलेशन. I mean revelation of the word. हाँ, वाक्य ना. So, but what is said here is, in English Bible, it said the revelation of Jesus Christ. और इंग्लिश बाइबल में लिखा है पर यीशु मसीह का प्रकाशन. You understand the difference? फर्क समझ रहा है? हिंदी में लिखा है वचन का प्रकाशन, प्रकाशित वाक्य, लेकिन इंग्लिश में लिखा है यीशु मसीह का प्रकाशन. So that's the main difference. It's not only revelation of the word of God. Who is the word? Word is Lord Jesus Christ. So it is revelation of Jesus Christ. तो ये खास फर्क है. ये सिर्फ वाक्य या परमेश्वर के वचन का प्रकाशन नहीं है, लेकिन वचन कौन है? वचन स्वयं प्रभु यीशु मसीह है. तो यीशु मसीह का ही प्रकाशन है. Yeah, in the John, I think 1 John you read, no, or John Gospel you read, in the beginning was the word. और हम यूहन्ना का पहला अध्याय में देखते हैं, आदि में वचन था. And the word was God. और वचन परमेश्वर था. And the word dwelt among us. और परमेश्वर जो है वो हमारे बीच में निवास किए. And word became flesh. और परमेश्वर वचन जो है वो देहधारी बन गया. So just now you took part in the bread and the wine. और अभी हमने प्रभु भोज में भाग लिया. What do they represent? वो क्या दर्शाता है? They represent Jesus Christ Himself. ये प्रभु भोज जो है स्वयं यीशु मसीह को दर्शाता है. In Jesus are all things. और यीशु मसीह में ही सब कुछ है. Yeah, so here the book of Revelation is the revelation of Jesus Christ Himself. और प्रकाशित वाक्य का किताब जो है वो यीशु मसीह का ही प्रकाशन है पूरा. So I am trying to understand all that. तो मैं ये समझने की कोशिश कर Which रहा हूँ. God gave Him to show His servants what must soon take place. और जैसे यीशु मसीह ने प्रकाशन दिया कि क्या अपने सेवकों को वे बातें दिखाए जो शीघ्र ही अवश्य घटेगी. About the future, we are all worried. Oh God, one side technology is growing, पैसा ज़्यादा होके जाता है,
बट हमारा प्रॉब्लम भी ज्यादा होता जाता है. और हम सब जन ऐसे परेशान है अपने भविष्य को लेकर के क्या होने वाला है. But- एक तरफ से सब तरफ से बढ़ोतरी होती जा रही है. But here it says God wants to show us what is to take place. और यहाँ पर लिखा है परमेश्वर अपने सेवकों को ये बातें दिखाना चाहता है कि भविष्य में क्या होने वाला है. So when you come closer to God or Jesus and you walk with him, you get to know what is going to happen to us. तो जब हम यीशु मसीह के करीब आते हैं और उनके साथ चलते हैं तब हमें पता चलता है कि भविष्य में क्या होने वाला है. In the midst of the uncertain world, you will be certain. और पूरा जो ऐसा संसार विचलित है उसके बीच में आपको शांति रहेगी, आपको पता होगा क्या होने वाला है. You will be walking confidently. आप साहस के साथ चलोगे, धैर्य में रहोगे. So he made it known by sending his angel to his servant John, यीशु ने अपने स्वर्गदूत को भेजा अपने सेवक यूहन्ना के पास, who testifies to everything he saw, that is the word of God and the testimony of Jesus Christ. यूहन्ना ने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी. So why in Hindi Bible it is written as revelation of the word of God? It comes here that God will testify, or John will testify everything he saw, the word of God and the testimony of Jesus Christ. अब हिंदी बाइबल में प्रकाशित वाक्य का प्रकाशन क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर लिखा है परमेश्वर के वचन की गवाही देगा. तो So- परमेश्वर की वचन की गवाही के बारे में बता रहा है. God has given us the word, तो परमेश्वर ने हमें ये वचन दिया है and every revelation of the word will talk about even the testimony of Jesus Christ. और हर एक परमेश्वर का वचन जो है वो यीशु मसीह की गवाही देगा. If you want to know what is the testimony of Jesus Christ, यदि आप जानना चाहते हैं यीशु मसीह की गवाही क्या है, the testimony is in you. वो गवाही आपके अंदर है. Your testimony is very valuable. आपका गवाही जो है वो बहुमूल्य है. All of our life and experience with God is very valuable. हम सबका जीवन और हमारा अनुभव जो यीशु मसीह के साथ है वो बहुत बहुमूल्य है. It was not only become your experience, but it is going to be a word of prophecy for the future to other people. ये सिर्फ एक अनुभव नहीं है आपके लिए जो आप जीवन जी रहे हैं, लेकिन ये आने वाली पीढ़ी के लिए जो है वो एक प्रकाशन के समान रहेगा. So in the next verse it says, "Blessed is the one और who आगे reads these words of this prophecy." और आगे तीसरे वचन में लिखा है धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ता है. And blessed are those who hear it and take no heart what is written in it, take to heart what is written in it, because the time is near. धन्य है वे जो इसको सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को हृदय से मानते हैं क्योंकि समय निकट आ गया है. Something is very common said in Proverbs 1 and Revelation 1. और कुछ बात जो है एकदम जैसा है वैसा ही लिखा गया है नीति वचन के पहले अध्याय में और प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में. Proverbs 1 it is said, if you read the word, you will get wisdom. और नीति वचन का पहला अध्याय में लिखा है यदि इस किताब के वचनों को पढ़ोगे तो तुम्हें ज्ञान मिलेगा, बुद्धि मिलेगी. So when I was a student, I only wanted to understand my studies or subjects. तो जब मैं एक विद्यार्थी था तो मैं अपनी पढ़ाई के बारे में समझ So I पाना used to read the चाहता था Bible, Proverbs again and again. और इसीलिए मैं नीति वचन बार बार पढ़ता था. So every time you read, oh, you get revelation about your subjects with that. और हर बार जब आप नीति वचन पढ़ते हैं आपको अपने विषयों के बारे में प्रकाशन मिल जाता है And वहाँ sure से. enough, God gave me wisdom to और score परमेश्वर- first mark in the university. और उसके द्वारा परमेश्वर ने मुझे सहायता किया कि मैं पहले उत्तीर्ण हो गया यूनिवर्सिटी में. But when I got into ministry, पर जब मैं सेविकाई में आया a lot of problems with leaders. बहुत सारी सेविकाई अगुओं के साथ समस्या होने लगी. I will come to this point later, but problems are mostly with the leaders, not with the members. So it says, blessed is the one who reads the word of this prophecy in Revelation. तो यहाँ लिखा है धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ता है. And blessed are those who hear it and take to heart what is written in it. धन्य है वे जो इसको सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को हृदय में मानते हैं. So this is a nice verse. Oh, blessed is the one who reads it.
बहुत अच्छा वचन है, धन्य है वे जो पढ़ते हैं। So I took the book of Revelation, started to read. तो मैं प्रकाशित वाक्य का किताब को लिया और पढ़ने लगा। पर कुछ नहीं समझता है. You understand anything in Revelation? आप कुछ समझ पाते हैं प्रकाशित वाक्य में? Lot of theories you will hear outside. बहुत But do सारे- you understand? बहुत सारे सिद्धांत होते हैं अलग अलग जगह पर क्या आप समझ पाते हो? It is very much necessary to understand in these last days. बहुत जरूरी है अंतिम दिनों में इन्हें समझना। So let us try. तो हम कोशिश करेंगे। So now in verse 4 it is written, John to the 7 churches in the province of Asia. चौथे वचन में लिखा है यूहन्ना की ओर से एशिया की 7 कलीसियाओं के नाम। How many churches? कितनी कलीसिया है? Jesus said in Matthew 16 verse 18, मत्ती का 16 अध्याय उसका 18 वचन में यीशु मसीह ने कहा, I will build my church मैं अपना कलीसिया बांधूंगा and the gates of Hades will not prevail against it. और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। I am not going into the explanation of that, but what is happening in the midst of us is Jesus himself is building the church. और हमारे बीच में क्या हो रहा है? यीशु मसीह स्वयं ही कलीसिया को बांध रहा है। The word church is repeated so many times after that verse Matthew 16 and 18. मत्ती 16 का 18 अध्याय में यीशु मसीह ने इस्तेमाल करने के बाद कलीसिया ये शब्द का बहुत जगह पर जिक्र हुआ है। In Gospels, some of you understand what I talk, right? आप लोग समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? Huh? कुछ लोग समझ पा रहे हो? Those who have come new may not understand, but any of जो नए नए आए हैं, जो पहले 2 बार आए हैं, वो नहीं समझ पाएंगे। बाकी लोग समझ रहे हो? हाँ? in the Gospels, it is said the kingdom of God is in our midst. और सुसमाचारों में लिखा है कि परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में है। Not many things are said about church, बहुत सारी बातें कलीसिया के बारे में नहीं कहा गया है, but it is said about the kingdom of God. पर परमेश्वर के राज्य के बारे में लिखा है। But then Paul, when he got converted by God, परंतु जब पौलुस का बदलाव हो गया यीशु मसीह के द्वारा, he was very concerned to build the kingdom of God. तो उसका बहुत इच्छा था कि वो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाए। So everywhere he went, he established, initiated church. और वो जहां-जहां जाता था वो कलीसिया की स्थापना करता था। So I got saved at the age of 16. तो मैं 16 साल की उम्र में परमेश्वर को जान लिया। Till 23, 7 years, I was doing one type of ministry among the young people. और 23 वर्ष की उम्र तक मैं एक तरीके का सेविकाई कर रहा था जवानों के बीच में। At the age of 23, और 23 साल की उम्र में I was not running after to take over a church. मैं एक कलीसिया लेने के लिए भागने के लिए नहीं कोशिश कर रहा I था। never wanted to become pastor. मैं कभी पास्टर नहीं बनना चाहता था, But God लेकिन gave the responsibility. परमेश्वर ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी। At the age of 23, I became a leader or a pastor of a church. 23 साल की उम्र में मैं एक अगुवा बना, एक कलीसिया का पासबान बन गया। So next 14 years I struggled. और उसके बाद 14 वर्ष तक बहुत संघर्ष किया। But then my whole intention was to travel to many places in India and establish churches. और मेरी एक ही बात थी, मेरे मनोकामना के मैं भारत में अलग-अलग जाकर कलीसियाओं का स्थापना करूं। So in 14 years, तो 14 सालों में, note this carefully, in 14 years I established 800 churches all over India. तो 14 सालों में 800 कलीसिया का स्थापना किया मैंने। आमेन। It's possible? क्या ये हो सकता है? I was still working as an engineer. और मैं तभी भी एक इंजीनियर के समान काम कर रहा काम था। करके चर्च बनाया. काम करते हुए चल रहा था सेविकाई। So he established. So what is concern is Christ wanted to build his church. और क्या बात है कि यीशु मसीह अपना कलीसिया बांधना चाहते थे। And so Paul went around many places. इसीलिए पौलुस अलग-अलग जगहों पर गया। But one country or one place today is called Turkey. और आज एक जगह का नाम टर्की कहा जाता है। किसको मालूम है टर्की? टर्की देश को सुना You है? heard about Turkey, right? In Turkey he established 7 churches. और टर्की में उसने 7 कलीसियाओं का स्थापना किया। Understand? So there are many other churches like Macedonia and other places.
So he went, but in Turkey he established 7 churches. और माकेदोनिया और ऐसे अलग अलग जगह भी है जहाँ पर वो गया, लेकिन टर्की में उसने 7 ऐसे कलीसियाओं का स्थापना की। And those 7 churches were chosen by John, and the letter is written here. और वो 7 कलीसियाओं को चुनकर यूहन्ना ने यहाँ पर उसके बारे में That's what you read in Revelation 2 and 3. वो right? हम प्रकाशित वाक्य का 2रा और 3रा अध्याय में पढ़ते So हैं। Revelation 2 and 3 are the address to 7 churches. और प्रकाशित वाक्य का 2रा और 3रा अध्याय जो है वो 7 कलीसियाओं को लिखा गया एक चिट्ठी है। And people interpret that differently. और लोग उसको अलग तरीके से जो है अपने उसका रूपांतर करते या अर्थ निकालते हैं। Within 30 to 40 years, all the 7 churches to some extent was shaken and backslidden. और 30-40 वर्षों के अंदर वो सारे कलीसिया जो हिल गए और पीछे लौट के चले गए। Are you getting the picture? आप समझ रहे हो इस बात को? Yeah, so he established 7 churches in तो that उस- area, and within 30 to 40 years, those churches were shaken. और उसने 7 कलीसियाओं का स्थापना किया और 30-40 वर्षों के अंदर वो सारे कलीसिया हिलकर वो सब लोग जो है वो पीछे चले गए। So I am not going to talk about all the 7 churches, मैं वो सारे 7 कलीसियाओं के बारे में नहीं बताने वाला but हूँ, I am going to talk about 3 churches out of 7. पर मैं 7 में से 3 कलीसियाओं के बारे में आज Yeah, that बताऊंगा। is mostly applicable to us. वो हमारे जीवन में लागू होने वाली बातें हैं। Okay, all the things that are written to these 7 churches are applicable to us. ये 7 कलीसिया को जो लिखी हुई बातें हैं वो सब हमारे लिए लागू होती है। But you may not find all the things happening to you. पर आपको हर एक चीज जो वहां पर हो रहा है वो आपके जीवन में लगाता हुआ नहीं लगेगा। But these 3 churches which I am going to refer are going to applicable to us. लेकिन ये 3 कलीसियाओं के बारे में जो मैं बताऊंगा वो हमारी कलीसिया से ताल्लुक रखती है। The famous church is Ephesians. और खास करके सबसे प्रसिद्ध कलीसिया है इफिसुस की कलीसिया। Yeah, in chapter 2 verse 1 to 7 दूसरे is अध्याय में पहले वचन से 7 वचन तक लिखा है। written about the angel of the church at or in Ephesus, right? इफिसुस की कलीसिया के स्वर्गदूत को ये ऐसे लिखा है। You understand that I'm going into very carefully I'm going to do some truths. मैं बहुत ध्यान पूर्वक आपको कुछ सच्चाइयों के बारे में लेकर जाऊंगा, बताऊंगा। There is a letter or a book in your Bible, the letter to Ephesians. आपके बाइबल में एक किताब है इफिसुस नाम का। You understand? आप समझ रहे हो? I have taken that book of Ephesians and preached maybe 1,000 times. और इफिसुस का किताब लेकर मैंने बहुत हजारों बार प्रचार किया। पिछली बार भी हमारे यहाँ पर किया। इधर किया था। Yeah, I forgot. Earlier I used to remember all that. Okay. So, because it is a book very much fitting into churches. क्योंकि ये किताब जो है बहुत से कलीसियाओं में एकदम बराबर फिट हो जाता है। Every time you read the book of Ephesians, you will get new revelation. और जब भी आप इफिसुस का किताब पढ़ोगे आपको नया प्रकाशन मिलेगा। Okay, we have to carefully take that in our midst when we are together. हमें उसे ध्यानपूर्वक अपने जीवन में लेना है जब हम Now साथ these में are the words of him who holds the 7 stars in his right hand and walks among the 7 golden lampstands. It जो says. 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और जो सोने की 7 देवटों के बीच में चलता फिरता है वह यह कहता है। So it already तुम देखा इधर 7 word 2 time आ गया। वो एक ही वर्स में 7 word is taken twice. 7 ये शब्द 2 जगह वापरा गया है यहाँ पर एक ही वचन के Some अंदर। other time I preach on the number 7. कभी और मैं 7 नंबर पर जो है 7 ये जो अंक है उसके ऊपर मैं प्रचार करूंगा। So these are the words of him who holds the 7 stars in his right hand and walks among the 7 golden lampstands. जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और जो सोने की 7 देवटों के बीच में चलता फिरता है वह यह कहता है। I know your deeds, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, your hard work and your perseverance. तेरे कठोर परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ। I know that you have tested those who claim to be apostles but are not. मैं यह भी जानता हूँ कि तू बुरे लोगों को जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं पर वे वास्तव में नहीं, उन्हें तूने परखा है Yeah, they were false. और उन्हें झूठा पाया है। You have persevered and have endured hardships for my name and have not grown weary.
तू धीरज रखे हुए है, तू मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। Yet I hold this against you. फिर भी मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है, You have forsaken your first love. तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। Kishore ne just mentioned about first love a little bit. और भाई किशोर ने अभी अभी पहला प्रेम के बारे में बताया था। Oh, in the first part of this message, from verse 1 to 3, it is, those words are appreciating your perseverance. और पहला, दूसरा और तीसरा वचन दूसरे अध्याय का, वो आपके काम, आपने जो काबिलियत से काम किया है उसकी प्रशंसा में है। आपने कैसे धीरज रखा है उसके बारे में बताता And your है। hard work. आपने जो परिश्रम किया है उसके बारे में बता रहा है। You understand what I mean? When you follow Christ and you want to be a good Christian, you come across hardships and testings. जब आप मसीह के पीछे चलते हो और उनके पीछे काम करना चाहते हो तो क्या होता है, हम अक्सर बहुत सारे परेशानियों से गुजरते हैं। हमारे जीवन में परेशानी आती है, संकट आती है। Everything don't become just easy. सब कुछ आसान नहीं हो जाता। You have to be doing hard work to follow Christ. आपको बहुत मेहनत और कष्ट उठाना पड़ता है मसीह के पीछे चलने And के लिए। young people, you need to take serious steps to follow Christ. और जवान लोगों को खास करके बहुत तकलीफ से ऐसे कदम उठाना पड़ता है, गंभीर कदम उठाने पड़ते हैं मसीह के पीछे चलने के लिए। Then we will become strong. तब तुम मजबूत बन जाओगे। I do not know how many of the young people here are interested in games or doing exercise. मैं नहीं जानता हूँ आप में से कितने जवान जो है एक्सरसाइज करते या गेम्स में दिलचस्पी रखते हैं, हाँ। खेल कूद में। कोई है खेल कूद में दिलचस्पी रखने वाले? You are interested only in cricket? सिर्फ क्रिकेट? And any of you are interested in running race? कोई भाग दौड़ में दिलचस्पी रखता है? Or any other games? कोई और गेम में दिलचस्पी रखने वाले कोई है? So in all the games, even in cricket, you have to do hard work. तो क्रिकेट में भी जो है आपको बहुत परिश्रम करना पड़ता है। You want to become Sachin Tendulkar, Dhoni और विराट कोहली। अभी कौन है? मैं अभी देखा नहीं। हाँ? आपको सचिन तेंदुलकर, MS धोनी या फिर विराट कोहली बनने का इच्छा होता है। So you know they didn't become a big star immediately. वो लोग तुरंत से एकदम बड़े ऐसे चमकदार सितारे नहीं बने। There are so many people in India. बहुत सारे लोग हैं भारत देश में। But why only few of them shine? और क्यों उसमें से सिर्फ थोड़े ही चमकते हैं? You know थोड़ा गावस्कर टाइम थोड़ा पॉलिटिक्स खेलता था और पैसा भी खेलता था। Okay, but nowadays no, you have to perform. अभी आपको करके दिखाना पड़ता है। Yeah, there may be little politics, but you have to perform. राजनीति You तो have वहां to पर है score many ही। runs and you have to take as many wickets as possible. आपको लेकिन बल्ला भी चलाना पड़ता है और आपको गेंदबाजी भी अच्छी आनी पड़ती And है। it doesn't become easily. और आसान नहीं होता। You have to do hard work. बहुत परिश्रम करना How पड़ता many है। of you know cricket playing, spinning the आप ball? में से कितनों को स्पिनिंग आता है? क्रिकेट में स्पिन बॉल डालने आता है। So you know it's very hard. From your hand when you deliver the ball, it goes curling. पता है बहुत मुश्किल है जब आप गेंद को आपके हाथ से छोड़ते हैं, वो ऐसे गोल घूम के जाना है उसको। And the spinners know from which direction they put and which the other direction it has to go. और सिर्फ स्पिनर ही जानता है कि वो कहाँ से डालेगा और कहाँ पर जाकर वो पहुंचने वाला It है। doesn't become easy. हाँ? It doesn't become easy. वो ऐसे ही आसान नहीं होता है। It's a hard work. बहुत परिश्रम की You बात have है। to practice again and again. आपको बार 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 Then इसका only you can प्रैक्टिस shine. करना है, तभी जाकर होगा। So Ephesian church had persevered all hardships. तो इफिसुस का कलीसिया ने धीरज से सब कठोर परिस्थिति का सामना किया They were very good in the beginning. और शुरुआत में बहुत अच्छे थे। Yeah, and then what it says in verse 4, और चौथा वचन में क्या लिखा है? yet I hold this against you, you have forsaken your first love. फिर भी मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। Remember the height from which you have fallen. स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है। Repent and do the things you did at first. इसलिए पश्चाताप कर और उन कामों को पुनः कर। So another thing I have learnt in my life. और एक बात मैंने अपने जीवन में सीखा है। Now how many years I walked with God? अब मुझे कितने साल हुए यीशु के पीछे चलते हुए? 50 साल हो गया अभी। 50। 50 साल के ऊपर ही हो गया अभी। 50 साल हमारा मैरिज एनिवर्सरी हो गया। हाँ? But I think
26 हो जाएगा तो 60 साल हो गया. 60 नहीं 70 नहीं 16 plus 26 how much? 16 plus 26. When I was old, when I was 66, 42. I came to the Lord. So 40 उधर, इधर 26. So 66 years. अच्छा. So you understand, I walked with God 66 60 years. years I think. I'm married for 50 years. 50 साल से शादी हुई है. अभी थोड़ा ग्रे हो गया. अभी मैं ट्रेन में आया अभी. Today morning I was coming in the train. आज सुबह ट्रेन से आ Everybody रहे was थे. willing to give me seat सब लोग मुझे सीट देना चाहते थे and give me way. और मुझे रास्ता भी दे रहे थे. Then I asked my wife, do I look old? फिर मैंने पत्नी से पूछा क्या मैं बुढ़ा दिख रहा हूँ? मैं ओल्ड मन करके सबको रास्ता देखता है, जहाँ देखता है. So I don't. So many years the Lord had been faithful. तो इतने सालों से परमेश्वर के साथ है. So in all these years, what happens is I look back. और इतने वर्षों से क्या होता था मैं पीछे देखता. The first 5 or 7 years were very precious for me. पहले 5 या 7 साल जो है बहुत बहुमूल्य थे मेरे When I लिए. worked among the young people, it was precious for me. जब मैं अपने जवानों के साथ काम कर रहा था मेरे लिए बहुमूल्य था. When I was 21 years old, I encountered with an angel. जब मैं 21 वर्ष का था मेरा आमना सामना एक स्वर्गदूत के साथ हुआ. But अभी तक जीसस को नहीं देखा. पर अभी तक कैसा है वो दाढ़ी भाई का रखा है क्या? वो जेरोम, what was his name? जेरोम ना, that is Jonathan. हाँ, Jonathan का माँ पर दिखता है क्या? नहीं, कौन सा? मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, चारों गॉस्पेल का बेस करके 4 मूवी बनाया और डिफरेंट हीरोज. सब जीसस अलग अलग दिखाया सबने. And whether Jesus looks, in your story also Jesus is there, but he is a young boy, I think. So anyway, how does he look? यीशु मसीह दिखते कैसे हैं? Anyone has seen Jesus here? क्या किसी ने यीशु को देखा है यहाँ पर? नहीं. आंटी की पूछो पर देखा है क्या? Because I have not seen Jesus, but I encountered an angel. मैंने एक आमना सामना एक स्वर्गदूत से हुआ. Yeah, after 7 years, God was gracious to me. परमेश्वर मेरे और दयावान थे. And so many times, because of angel, I escaped in my life. और कई बार जीवन में स्वर्गदूत के कारण मेरे जीवन में मैं बचता गया. Otherwise, I would have got drowned twice in my year. या तो फिर 2 बार ऐसा हुआ कि मैं डूबने को गया. And once I met with a very serious accident. और एक बार एक बहुत बुरी दुर्घटना हुई थी. I thought everything is over. मुझे लगा सब कुछ समाप्त हो चुका है. But the angel of God came and pushed me out. पर स्वर्गदूत आकर मुझे वहां से बाहर धक्का देकर निकाल दिया. So during those first 4-5 years, I was loving God very much. तो शुरुआत के 4-5 वर्षों थे मैं परमेश्वर से बहुत प्यार करता When था. you came to Christ, how much was your love to God? और जब आप पहले परमेश्वर के पास आए तब आपका प्यार कैसा था? Now we are very good. Today you sang about His Gehre love pyar. towards us. हमने आज गीत गाया गहरे प्यार से तूने प्यार किया. Yeah, then how much did you love? और आपने कितना प्यार किया? How much did you love the word of God? और आपने परमेश्वर के वचन को कितना प्यार किया? And how many hours you prayed? और कितने घंटों तक प्रार्थना किया? And how many revelations you wanted from God? और कितने प्रकाशन आप चाहते थे प्रभु से? And God gave all those answers. और प्रभु ने हर चीज का उत्तर दिया. But then what happens? Our first love. अभी लड़का लड़की लोग के बीच में भी ऐसा ही होता है. पहला प्यार करता है, फिर शादी करता है, फिर गड़बड़ हो गया, वो शादी चले गया. I mean, love चले गया. प्यार चला जाता है. So the love remains only for a time. तो प्यार जो है थोड़े ही समय के लिए रहता है. But Christ's love towards you remains forever. लेकिन परमेश्वर का प्यार हमारी ओर जो है वो You know, with सदा के लिए all बना your रहता love, है. O Lord, you loved us. और उसने हमेशा हमसे प्यार करते गए. And how many times we forget about our things we are doing, but He doesn't forget the things. और कितनी बार ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं कुछ बातों को लेकिन प्रभु कभी नहीं भूलता His है. love for you is very strong. उनका प्यार हमारे लिए बहुत मजबूत है. And year after year, His love for you is more. और साल से और आगे आगे जैसे बढ़ता जाता है साल वैसे ही उनका प्यार और बढ़ता जाता है. But year after year, our love towards God
goes down. और जैसे ही जैसे साल बढ़ते जाते हमारा प्यार कम होता When जाता you है। started your Christian life, how much you prayed जब हमने हमारा मसीह जीवन शुरुआत किया, हम कितना प्रार्थना करते थे, and how much you read the word of God. आपने कितना वचन पढ़ा तभी। And one more question. और एक सवाल, how many people you testified and how कितने many लोगों people को you आपने served. परमेश्वर की गवाही दी। And अभी आजकल क्या होता है, कुछ आर टेस्टिफाई करता है, Do we testify now? gospel work करता है, Do we share the gospel today? yeah, think over it. इसके बारे में सोचो। I was thinking today the church is suppose 300 400 maybe around 400, okay, 400 last time नवंबर में देखा, आज मैं देखता हूँ only 398, slightly you are less. I'm counting, when I look here and there, sitting there, I'm counting how many people have come and how many have not come. मैं वहाँ बैठे बैठे गिन रहा हूँ, आप में से पिछली बार में से मुझे अभी थोड़े कम कम नजर आ रहे हैं। मैं यहाँ बैठकर हर एक को गिनता रहता हूँ। चर्च बढ़ाना मांगता है, church has to grow. चर्च बढ़ना चाहिए। Next hall will be ready. अभी यहाँ का हॉल जल्दी शुरू होने वाला So है bigger hall will be there. और हॉल बढ़ने वाला है, बहुत And बड़ा it has to होगा। be full, more than this in the church. और इससे ज्यादा हमें कलीसिया में जगह है, तो हमें भी बढ़ना है, Yeah, don't get reduced. कम नहीं होना है। You have to take interest. हमें और दिलचस्पी लेनी So है। how is your first love? हमारा पहला प्यार कैसा है? So उनको सेवा करने के लिए how much do we show interest? और सेवा हम कितना दिलचस्पी दिखाते हैं सेविकाई की You तरफ। think over, you will know. आपको खुद को पता In your होगा, heart, in your mind, you will know. आपके दिल में, आपके दिमाग में आप जानते How हो much you have become busy and making money or doing so many other works, looking after children and all, but how much you are bothered about the kingdom of God. आप कितना व्यस्त हो गए हो, आप धन के पीछे कितना भाग रहे हो, आप अपने बच्चों के पीछे कितने पड़े हो, आप सब कुछ छोड़कर परमेश्वर को पहला प्यार जो है वो छोड़ दिए। God wants us to grow. परमेश्वर That's चाहता है why कि I हम asked बढ़े। her, when is the leaders meeting? Because I want to come and address all the leaders. How much you love God आप कितना परमेश्वर से प्यार करते हैं? and repent and do the things you did at first. स्मरण कर और पश्चाताप कर, जो उन कामों को पुनः कर जो तू पहले करता था। If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. यदि तू पश्चाताप नहीं करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दिवट को स्थान से हटा दूंगा। And verse 6, but you have this in your favor, you hate the practices of Nicolaitans, which I also hate. और छठे वचन में लिखा है, पर हाँ तुझ में यह बात तो है कि निकोलियों के काम से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। To him who overcomes, I will give the light to eat from the tree of life which is in the paradise of God. जो विजय प्राप्त करेगा मैं उसे उस जीवन के पेड़ का फल खाने को दूंगा जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है। So what is this? Did you think about the tree? क्या आपने उस पेड़ के बारे में सोचा? So why it is in paradise? वो क्यों स्वर्गलोक में है? Why he wants us, if you don't do the work properly, I will remove the lampstand. और क्यों ऐसे कह रहा है कि यदि तुम ठीक से काम नहीं करोगे, पश्चाताप नहीं करोगे, तो मैं दिवट को अपने स्थान से हटा दूंगा। Yeah, I will come to you and remove your lampstand means the anointing of the Lord which is burning within you will be removed if you don't obey the God. यदि तुम परमेश्वर की बात को नहीं सुनते हो, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते हो, तो परमेश्वर क्या करेगा? तुम्हारा दिवट को हटा देगा, लिखा है। And what God hates, you have to hate, or what you hate, God will hate. और जो जो परमेश्वर नफरत करता, घृणा करता है, उससे तुम्हें भी घृणा करना है। Who has an ear, let him hear. जिसके कान है वो सुन ले। How much we are hearing? हम कितना सुनते हैं? Hearing only Sunday morning message is not important. सिर्फ रविवार के दिन सुबह के समय में वचन सुनना जरूरी नहीं है। How much you hear about what God speaks to you? आप कितना सुनते कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है? How is your prayer life? आपका प्रार्थना का जीवन कैसा What you है? are thinking and what you are receiving? आप क्या सोच रहे हो और क्या पा रहे हो? You know, suddenly some problem comes. Oh God, I don't know what to do. I don't know what to do. I will be thinking for some time. अचानक कुछ समस्या आ जाता है, हम सोचते हैं कि क्या करना है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये नहीं And करना है। suddenly I feel, oh God,
I have not sat in your presence. और अचानक ध्यान आता है कि परमेश्वर मैं तुम्हारी उपस्थिति में नहीं बैठा I have हूं। not heard from you. मैं तुमसे नहीं सुना आप क्या So कहना if you चाहते हैं। really love God, you hear His word. यदि आप सच में परमेश्वर से प्यार करते हैं तो आप उनके वचनों को सुनोगे। From your spirit or through your spirit, God can speak to you. आपकी आत्मा के द्वारा परमेश्वर आपसे बातें कर सकता God है, can inspire you. आपको प्रेरित कर सकता है। You know, last year, 2025, just went 10 days past. 2025 में 10 दिन pहले जो साल चला गया, The whole year I was running here and there पूरा साल में यहाँ वहाँ भाग रहा था because I wanted to do something in India. In America. क्योंकि मैं अमेरिका में कुछ करना चाहता था। So I tried all the possible ways. तो मैंने हर मुमकिन कोशिश Three की important ways I definitely wanted to follow up and somehow start the ministry. और 3 ऐसे तरीके थे जो मैंने अपनाया और सेविकाई शुरू करना चाहता था। And God said, और परमेश्वर ने कहा, He blocked all the doors. उसने सारे रास्ते बंद I कर was दिए। very fed up. She knows. मैं बहुत परेशान हो गया, पत्नी भी बहुत जानती है। God, what I'm not looking into anything. I'm not seeing, I'm not looking into anything. Why it is so? Doors are all closed. और मैं परेशान हो गया कि परमेश्वर क्या मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सब दरवाजे बंद क्यों है। Then the Lord said, think about Malaysia. और फिर परमेश्वर ने कहा I मलेशिया have के बारे already में सोच। spoken 3 years before you. मैंने 3 वर्ष पहले तुमसे And बातें you have की है visited 4 times Malaysia. और तुम 4 बार मलेशिया जाकर आए Now हो। what you did in India, do it in Malaysia. और जो तुमने भारत में किया उसे मलेशिया में So करना I है। have come this 2026 to do the ministry more and more in Malaysia. तो 2026 में मैंने पैर रखा है यहाँ पर कि मैं ज्यादा सेविकाई मलेशिया में कर सकूं। So Yahweh suddenly opened and peace came into my mind. और अचानक से द्वार खुल गया और मेरे मन में शांति आ गई। So when you think about some things are blocked in our life, seek after God. तो जब हम देखते हैं कुछ रुकावट आ जाती है तो हमें परमेश्वर के पास जाना He है। who has an ear, let him hear. जिसके कान है वो सुन ले। Sometimes we become deaf and dumb, कभी कभार हम गूंगे और बहरे बन जाते हैं, but we need to hear from God. पर हमें परमेश्वर से सुनना है। Okay, this is the letter to the Ephesians. ये चिट्ठी जो है इफिसुस की कलीसिया I के told लिए। you in the beginning, Ephesian book is very important in the Bible. और मैंने आपसे पहले ही कहा कि इफिसुस का किताब बहुत जरूरी है बाइबल में। And about the church of God, many things are written in the book. और of कलीसिया, परमेश्वर की कलीसिया के बारे में बहुत बातें लिखी है वहां पर। To whom much is given, much is expected. जिसको ज्यादा दिया गया है उससे ज्यादा अपेक्षा करते हैं। But this church within 30-40 years failed. लेकिन ये कलीसिया जो है 30-40 साल में पूरा खत्म हो And गया it has come to this stage. और इस तरीके यहाँ तक पहुंच गया। Okay, next letter is to the church at Smyrna. और अगला चिट्ठी जो है स्मुरना की कलीसिया के नाम है। Then another letter is church in Pergamum. फिर पिरगमुन की कलीसिया के नाम चिट्ठी है। And then to church in Thyatira. फिर तुआतीरा की कलीसिया के नाम Okay, है। four letters addressed to 4 different churches in the book, in the chapter 2. और दूसरे अध्याय में 4 चिट्ठियां 4 कलीसियाओं को लिखी गई है। Okay, now church has gone through many struggles in the past. कलीसिया जो है बहुत संघर्ष से गुजरा है पिछले दिनों में। Every time God does something new to the church. और हर बार परमेश्वर कुछ नया करता है कलीसिया में। So if church in Ephesus was only 30-40 years, तो यदि कलीसिया इफिसुस का कलीसिया 30-40 वर्ष का था, then the church in Smyrna went about up to 300. आफ्टर Up to 300 year. स्मुरना की कलीसिया करीब 300 साल तक चला। And then church in Pergamon went some more. और पिरगमुन की कलीसिया और थोड़े साल तक चला। Have you heard from me about the dark ages? Anytime I told church history. How can I forget? Okay, dark ages means from 300 AD, after Christ born 300 years. We are in 2026. After 300 years, this dark ages started. और हम 2026 वर्ष में है। यीशु मसीह के जन्म के 300 वर्ष बाद जो है ऐसे अंधकार के काल ऐसे कहा जाता है। Then up to 1500, 1200 years were called dark ages. 300 से लेकर 1500 का जो शताब्दी था तब Yeah, तक next के time you सालों remember. को अंधकार के साल कहा जाता Why है। is it called dark ages?
और क्यों उनको अंधकार के काल कहा जाता I है? mean, whoever read has, I mean, able to read. Do you have Bible in your hand? क्या आप सबके हाथ में बाइबल है? सबका पास बाइबल है. या हमारा ये चाइना का पास sometime we were smuggling Bible. चाइना में हम लोग बाइबल स्मगल करके भेजते थे. Yeah, I was also part of it, some slightly. तो मैं भी उसकी एक भाग था तभी वहां पे. Okay. Now those 1200 years, तो people in the world were not getting word of God. और वो 1200 सालों तक जो है लोगों को जो है परमेश्वर की वचन नहीं मिल रहा था. So Catholic Church dominated. तो कैथलिक कलीसिया जो ये सुना धार्मिक होगा ना, कलीसिया है कैथलिक। वो अभी आप ऊपर लोग- था. आप लोग कोई लोग बोलता होगा तुम बाइबल लेके जाते हो, तुम कैथलिक है ऐसा ही पूछेगा. So you also accept you are a Catholic, because who will explain whether I am Protestant or I belong to Jesus Love Ministry, and all that struggle is there. So the Catholic Church was very dominant for 1200 years, 300 to 1500. तो 300 से लेके 1500 का जो शताब्दी उस समय तक का जो काल था उतने वर्षों तक जो है कैथलिक की कलीसिया बहुत ज्यादा आगे थी. So they were not getting the word. और वचन ज्यादा मिल नहीं So रहा था. after 1500, Martin Luther came. और 1500 जब हो गया साल उसके बाद मार्टिन लूथर आ गया. Then he declared everybody should read the word. और फिर उसने शुरुआत किया कि हर एक So, व्यक्ति ने बाइबल पढ़ना चाहिए. Then Bible, it is called a Reformation time. Okay. और फिर उसको पुनर्स्थापना का समय कहा जाता है. So the second church Smyrna and the third church Pergamon and fourth church were all in this period. और स्मुरना, पेरगमुन और तुआतिरा ये Actually, तीनों they were- कलीसिया जो है उस काल की बातें हैं. No. Actually, they were not during these years. This year covered when Paul was there. But the truth, what is written here, covers that age. ये जो लिखा गया है ये उस समय के लिए लिखा गया है. 300 से लेकर 1,500 जो साल था उस समय इन कलीसियाओं का जो स्थिति था उसके ऊपर लिखा गया है. So anyway, we will read to the angel of the church in Thyatira. हम पढ़ेंगे 18 No, वचन. sorry. I'm reading the angel church in Sardis, chapter 3. हम तीसरा अध्याय So- में जाएंगे सरदीस की कलीसिया के पास. So the four chapters, okay, four letters to the four churches which are written, they are over. 4 चिट्ठियां 4 कलीसिया को लिख के यहाँ पर समाप्त हो जाती है दूसरे अध्याय में. So now to the church in Sardis, it can be applicable to us. और तीसरा अध्याय में जो सरदीस की कलीसिया के लिए लिखा गया है वो हमारे लिए मान्य रखता है. To the angel of the church in Sardis, right? सरदीस की कलीसिया के स्वर्गदूत को ये लिख. These are the words of him who holds the 7 spirits of God and the 7 stars. जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं वह यह कहता है. So do you remember 7 words once appeared twice in one verse? आपको याद है प्रकाशित वाक्य का दूसरा अध्याय का पहले वचन में 7 ये अंक 2 बार कहा गया है. So here again he writes 7 2 times. यहाँ फिर से तीसरे अध्याय के पहले वचन में 2 बार 7 These are इस the अंक words का of him इस्तेमाल who किया holds गया the है. 7 spirits of God and the 7 stars. जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं वह यह कहता है. When the Holy Spirit comes upon you, जब पवित्र आत्मा आप पर उतरता है. सब लोग Holy Spirit कौन इधर लिया है? कितने लोग पवित्र आत्मा को जानते हैं और अपने जीवन में और अनुभव अन्य किया है. भाषा में बात करता है आप लोग? अन्य भाषा में कितने लोग बात करते हैं, प्रार्थना करते Praise हैं. God, wonderful. So when the Spirit of God comes to you, what all comes to you? I have told certain things. जब पवित्र आत्मा आता है तब क्या चिन्ह होते हैं आपके जीवन में? हाँ? अन्य भाषा बोलते अन्य हैं. भाषा बोलता है. फिर कोरिन्थियंस 12 में 12 ना और 11 9 गिफ्ट्स किधर लिखा है? 9 वरदान कहाँ लिखा है? कुरिन्थियों का कौन सा अध्याय? So when the Spirit of God comes to you, you get the gifts. तो जब परमेश्वर की आत्मा आप पर आती है तब तुम्हें वरदान मिलते हैं. Our Galatian, in the book of Galatians chapter 5 verse 21-22. गलातियों का 5वां अध्याय 21-22 वचन में लिखा है. What is written? आत्मा के फल. Fruit of the Spirit. Okay? आत्मा के फल.
Very good Bible class. Okay, so now here something else is written. यहाँ पर कुछ और लिखा गया है. These are the words of him who holds the seven spirits of God and seven stars. और यहाँ लिखा है जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है. You will get seven spirits. I will read about the seven spirits some other time. In Isaiah 7 it is given. Sorry, in the book of Isaiah, but I don't know this. यशायाह की किताब में 7 आत्माओं के बारे में लिखा है. मैं कभी और उसके बारे में बताऊंगा. There is the spirit of wisdom, और बुद्धि का आत्मा, spirit of boldness, और साहस की आत्मा, understanding, और समझ की आत्मा, discretion. और परखने की So you आत्मा. receive all such seven spirits of God into you. तो ये 7 आत्माएं जो परमेश्वर की है वो आप पर आ जाएगा. And next is, and the seven stars. और 7 तारे. There are so many stars we see in the night, right? हम आकाश में बहुत सारे तारों को देखते हैं रात में. But God says there are seven stars which are important in life. पर परमेश्वर कहता है 7 तारे जरूरी So हैं. about that also we'll see later. उनके बारे में भी हम कभी और I know देखेंगे. your deeds. You have a reputation of being alive, but you are dead. मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ. कैसा है? How is our life? हमारा जीवन कैसा है? Are we Christians full of fire? क्या हम मसीह पूरे आग से भरे हुए हैं? और ठंडा हो गया, पानी भर गया? How is it? You are facing 26. I already promised and I told you this year will be full of fruit or fruitfulness. मैंने आपको पहले ही वादा किया है, ये साल जो है फलवंतता का वर्ष है. You have the reputation you are alive, but you are dead. आप ये जीवित तो कहलाते हो पर मरे So हुए. how's your life, you think? तो Wake up, आपका जीवन कैसा है? आप जाग जाओ. wake up, strengthen what remains and is about to die, for I have found your deeds complete in the sight of my God. जागता रहे और उनको जो मिटाने को थे किंतु बाकी रह गए हैं दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर की दृष्टि में पूरा नहीं पाया. So in our spiritual life, if there is any dullness or no fruitfulness, you have to be careful. यदि आपका आत्मिक जीवन में कुछ फल नहीं है या फिर आप एकदम ठंडे हो गए हो तो आपको ध्यान देना जरूरी है. My first time कैसा वो होली स्पिरिट में भरा मालूम है आपको? मैं टेस्टिमनी दिया था. हाँ, दिया था, सुना है मगर बहुत भूल गया. हाँ, एग्जाम में लॉर्ड को रिसीव किया, बट होली स्पिरिट व्हेन ही फिल्ड मी, व्हाट हैपेंड टू मी? अभी आप लोग अन्य भाषा में बात किया बोलता है. आप बोलते गए और बाकी लोगों को बोल के आप बात करता है क्या? खुद बात किया? खुद बात की है ना. अन्य भाषा में कोई बोलकर सिखाया या खुद बोले? And how long? कितने समय तक? You know, when God, I was against Holy Spirit. I didn't like tongues. मैं पवित्र आत्मा को नहीं मानता था और मैं अन्य भाषा मुझे नहीं अच्छा लगता था. Both साल 16 years when I was 16 years. जब मैं 16 वर्ष का था. So one day I was caught to pray. और एक दिन मुझे प्रार्थना करने पकड़े थे. Yeah, I was praying with some boys. और मैं कुछ लड़कों के साथ प्रार्थना कर रहा था. And maybe that day I looked at stars. You said this. I said no. You said this. So you know how long I I prayed? told not. How long? I don't know the time, but I remember that it That went is on for a important long. now. I am asking a question. You know, 5:30 we knelt down to pray. 5:30 बजे शाम को हम प्रार्थना करना शुरू किए. And it became 8:10. और शाम के 8:10 हो गया. Sorry, 5:30, 1 hour 40 minutes means 6:40. Close to 7, I think. So 1 hour 40 minutes I prayed in 2 tongues. hours 40 minutes. Oh. 2 घंटा 40 मिनट तक मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता And रहा. somebody woke me up. That is why I got up. और किसी ने मुझे जगा दिया, इसके लिए मैं उठ गया. अभी बात करता है उतना टाइम. How many hours you are praying in tongues? कितने समय तक हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं. होली स्पिरिट आ गया, ठीक है, कड़क बोलेगा, फिर that is all over. फिर ये सब समाप्त हो जाता है. एक बार पहले बार पवित्र आत्मा मिलने के बाद. Don't fall down from that. और परमेश्वर का वचन कहता है उसमें से गिरना नहीं. कभी कभी मैं 1 घंटा के लिए पवित्र आत्मा से अन्य भाषा से बात नहीं किया, कुछ गड़बड़ है मेरे को. You know, I always understand. So what I do in America, it is quite possible. You start driving, okay?
So America- start the driving and start speaking in tongues. अमेरिका में ये संभव है क्योंकि ड्राइव करना शुरू कर देते और अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू कर देते। मेरा डॉक्टर का घर में से मेरा घर को आने को 1 घंटा लगता है, सो पूरा 1 घंटा बात करने का, सो अच्छा हो जाता है, राइट? ओके, अंडरस्टैंड। यू स्पीक इन टंग्स एज मच एज पॉसिबल व्हाइल ड्राइविंग, और चपाती बनाता है वो टाइम भी बात करो। मैं पहला यही टेस्टिमनी दिया पंजाबी का, पंजाब। हाँ, अंडरस्टैंड ऑल दैट। सो यू स्पीक इन टंग्स, you will have all the 7 spirits. आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते जाओ, आप में सारी 7 की 7 आत्माएं वास करेगी। And your lampstand will be with you. और आपका दिवट आपके पास रहेगा। So it is about to die, but I will strengthen what remains. वो मरने को है, पर जो रहेगा बाकी है उसको तो कोशिश कर मिटाने को नहीं दे। And verse 3, remember therefore what you have received and heard. तीसरा वचन, स्मरण कर कि तूने कौन सी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, Obey it and repent. तू उसमें बना रहे और पश्चाताप कर। But if you do not wake up, I will come like a thief. यदि तू जागरूक न रहेगा तो मैं चोर के समान अचानक आ And you will जाऊंगा। not know what time I will come to you. तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस समय तुझ पर आ जाऊंगा। So, one more incident. और एक बात बताऊंगा, Jesus is coming soon. यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं। But जल्दी आता है? नहीं आता है। So 2000 का पहला हम लोग एक्सपेक्ट करता था, you know, we were all waiting, oh Jesus is coming, Jesus is coming. When we are taking part in the communion, oh enemy come, right? सोने की जाएगा, वो लॉर्ड रात को आएगा तो आपको छोटा बात लेके जाओ ऊपर, ऐसा करके हम प्रार्थना करता था। इतना भय था। You ask auntie, she will tell you. In her days also it was spoken like that. And then what happened? अभी है तो उतना भय है, अरे जीसस बोलता है आता है करके नहीं आता है। So we forgot about his coming. How many of us remain expecting him? कितने लोग अब भी उनका इंतजार कर रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं। And the Lord says, I will come like a thief. और यीशु मसीह कहता है, मैं एक चोर के समान आऊंगा। Thief बोल के आता है, ये 2 घंटा 25 मिनट होएगा, वही टाइम में आएगा, ऐसा बोलता है thief? नहीं, No. कभी when you are slack, he comes. जब आप एकदम आराम में सो जाते हो तब वो आता है। So God may come anytime when you do not expect. परमेश्वर कभी भी आएगा जब आप अपेक्षा नहीं कर And he'll रहे take हो, the church with him. और कलीसिया को साथ ले जाएगा। So be prepared, he says. तो तैयार रहो, वो कहता है। So you should have good clothes worn up. और इसीलिए अच्छे कपड़े, शुद्ध वस्त्र पहन के तैयार रहना And है। they will be walking with me and dressed in white, for they are worthy. वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ चलेंगे फिरेंगे क्योंकि वे इस योग्य है। And he who overcomes will like them be dressed in white. जो विजय प्राप्त करेगा उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। You know why? Not white garment. हम तो कलर क्रीम डाला है, ब्राउन डाला है. So I am not worn in white, but some people wear white just to be Pentecostal. कुछ लोग ऐसे सफेद कपड़े ही पहनते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि पेंटिकॉस्टल, वो लोग पेंटिकॉस्टल। But the white reminds you of the holiness you need. पर श्वेत या फिर सफेद कपड़े, सफेद रंग जो है वो परमेश्वर की पवित्रता को दर्शाता Walk in है। purity. हमें पवित्रता में चलना है। And then the Lord will says, I'll never blot out your name from the book of life. और तब परमेश्वर कहता है, मैं उसका नाम अपने पिता और स्वर्गदूतों के सामने स्वीकार And before करूंगा। the Father I will acknowledge your name. मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से कभी नहीं काटूंगा और उसका नाम पिता और स्वर्गदूतों के सामने स्वीकार करूंगा। So the Holy Spirit speaks to the churches. और पवित्र आत्मा कलीसिया से बातें करती है। Lastly, I want to touch about the church in Laodicea. और अंत में मैं लाउदीकिया की कलीसिया के बारे में बताना चाहता From हूँ। verse 14 14 वचन से लिखा है in chapter 3. तीसरे अध्याय में, These are the words of the Amen, the faithful and true witness, the ruler of God's creation. लाउदीकिया की कलीसिया के स्वर्गदूत को ये लिख, जो आमीन विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और जो परमेश्वर सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है। So the earlier church I read that talks about 1500 to 1700. The और- church in Sardis. और सरदीस की कलीसिया जो है 1500 से लेके 1700 वर्ष के बीच की बात Up to बताती है। 1500 dark ages, I said. 1500 वर्ष तक क्या था? अंधकार का काल था। And 15 to 1700 is that church which we saw. और 1500 से लेके 1700 तक था वो सरदीस का कलीसिया था जो हमने देखा। The church in Laodicea,
और लौदीकिया क्या कलीसिया जो है is the present church. वो आज की कलीसिया है, It is after 1700 वो 1700 वर्ष के बाद till की कलीसिया है, 2026. 2026 तक की कलीसिया है, It may go far वो और भी आगे चलेगा, because their condition is neither cold nor hot. क्योंकि वो जो तरीका है अभी न गर्म है न ठंडा है। Yeah, Christianity कैसा है? तुम्हारा faith, how is your faith? आपका मसीह जीवन कैसा है, आपका विश्वास कैसा अरे है? संडे आ गया, गड़बड़ है, 8 बजे जाने का चर्च को, तो कैसा भी रेडी होके आ जाने का, प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए, कर बराबर। That's what we do. The church in America is worse. हम ऐसा ही करते हैं और अमेरिका का कलीसिया इससे भी गया गुजरा You है। know, because of England, we so many of us in India got the gospel. और अंग्रेजों के कारण बहुत सारे लोगों को भारत में जो है परमेश्वर का वचन मिला। अभी कौन रूल करता है यूके को, इंग्लैंड को? आज भारत इंग्लैंड अंग्रेज को या फिर यूके को, लंदन को, उनको कौन उनके ऊपर राज्य कर रहा है? क्रिश्चियन नहीं है, मुसलमान है। It has gone out. And what happened to America? और अमेरिका के साथ क्या हुआ? यही मेरा स्ट्रगल है उधर। I'm all the time struggling because those Christians, only for name's sake they are Christians, neither cold nor hot. वहां के कलीसिया की मसीह ऐसे ही है, न ठंडे है न गर्म है। They don't know. ट्रम्प थोड़ा कड़क है। वहां के राष्ट्रपति जो है वो कड़क है। अमेरिका लोग के लिए ट्रम्प अच्छा है और इंडियन लोग के लिए ट्रम्प अच्छा नहीं। क्यों? मेरे को भी बोला और सबको बोलता है तुम खाली 2 महीने के लिए जाओ अमेरिका, इंडिया हाँ, और अमेरिका में रह जाओ बोलता है। सो इट बिकम्स अ प्रॉब्लम तो फॉर मुसीबत इंडियन, हो जाता है। बट फॉर अमेरिका इट इज वेरी गुड बिकॉज दे आर बिकमिंग स्ट्रॉन्गर। सो ही इज अ मैन, थोड़ा हॉट है, उसको एक दिल है, वो जरा मजबूत व्यक्ति है। या सो ही हैज टू बी हॉट। आफ्टर 2 years he will go away from the post. Well, who will come next? 2 साल के बाद उसकी कुर्सी चली जाएगी, फिर वहां पर कौन And all आएगा? the people against him or against him. और उसके खिलाफ के लोग जो है वो अभी भी उनके खिलाफ And ही they है। may vote against him. We don't know. वो लोग उसके खिलाफ ही But God मत gives करेंगे। grace to the people who are hot. पर परमेश्वर ऐसे लोगों को अनुग्रह देता है जो गर्म होते So हैं। this time Christianity in America has become neither hot nor cold. और अब अमेरिका की मसीहत पना न गर्म है न ठंडा है, ऐसा हो गया है। I wish you were either one or the other. That means either hot or cold. लिखा है कि मैं ऐसा इच्छा रखता कि तू एक तो ठंडा होता या गर्म रहता। Because of your lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. तू गुनगुना है, तू न ठंडा है और न गर्म, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। Very serious. बहुत गंभीर बात है। And it's verse 19. और 19 वचन में लिखा है, Those whom I love, I rebuke मैं जिनसे प्रेम करता हूँ उन सबको डांटता और ताड़ना देता हूँ। and discipline. Yeah. So be earnest and repent. इसलिए तू उत्साही हो और पश्चाताप कर। So here is इसलिए the सुन। important verse, chapter 3, verse 22. और तीसरा अध्याय का 20 22 वचन 20 and 21, very important. We use this verse again and again. Behold, I stand at the door and knock. प्रकाशित वाक्य का तीसरा अध्याय 20 और 21 वचन बहुत महत्वपूर्ण है। देख, मैं द्वार पर खड़ा हूँ और द्वार खटखटा रहा हूँ। And if anyone hears my voice and opens the door, I will come in, eat with him, and he with me. यदि कोई मेरी आवाज सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ भोजन But many करेगा। times we use this verse for unbelievers. खास करके हम अक्सर ये शब्द, ये वचन जो है But- अविश्वासियों के लिए But वापरते these हैं, words are for believers. लेकिन ये वचन जो है कलीसिया के लिए, God is- विश्वासियों के लिए है। God is standing next to our heart परमेश्वर हमारे दिल के करीब है and He is knocking at the door. और हमारे दिल को के द्वार पर खटखटा रहे And He हैं wants us, our heart to be open और वो चाहते हैं कि हम हमारे दिल को खोले and allow Him to come in. और उनको अंदर आने दे। So all your prayers, how they are made तो आपकी सारी प्रार्थना कैसी होती है, and how do you get the answer? आप कैसे उत्तर पाते Think हो, over it. Do you get the answer or it takes time? इसके बारे में सोचो। क्या उत्तर में समय लगता है But या तुरंत मिल He जाता is है? always ready to answer you. परमेश्वर हमेशा तैयार है आपके सवाल को जवाब But it देने, depends प्रार्थना on you how much you allow Him to hear. पर आप पर निर्भर है कि आप कितना उनको मौका So देते हैं। God's love is always strong.
तो परमेश्वर का प्यार हमेशा मजबूत है and God's love is always for you. और परमेश्वर का प्यार हमेशा आपके ओर है। But लेकिन you read the seven letters. आपने 7 कलीसियाओं को पढ़ना, आप इनकी चिट्ठियों को, Yeah, the chapter 2 and 3. दूसरा और तीसरा अध्याय जरूर पढ़े। And mainly what affects us, I have told you. जो हमारे लिए लागू होता है वो मैंने आपको आज बता दिया है। So let us repent. तो आइए हम पश्चाताप करें, Let us pray more. हम और प्रार्थना करें, Let us speak in tongues more. हम ज्यादा अन्य भाषा में बातें करें And more so you witness. और इसी रीति से और ज्यादा गवाही दे लोगों के सामने। I'm going to come again before the end of the month after they come back. मैं वापस यहाँ पर आने वाला हूँ आपके बीच में, And I want to address all of you. और मैं आप सबसे फिर से बात करना चाहता Maybe हूँ। Sunday or before that. हो सकता है कोई रविवार हो या उससे भी पहले हो, Please come and listen, and I want a fire to burn out of this. और मैं चाहता हूँ आप सबका दिवट का आग जो है वो जलता रहे, Your lampstand should have the light burning. आपका दिवट का आग जलता रहे। God bless you. परमेश्वर सभी को आशीषित Amen. करे। आमेन। Let us pray. Let's pray and give ourselves to Him. आइए Father हम- God, I thank you and praise you for all your people. You have chosen them, O God. प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके लोगों को। परमेश्वर, आपने इन्हें चुना है And you said, O Lord, you always love us. और आपने कहा है कि आप हमेशा हमसे प्यार करते हैं। We also loved you. हम भी आपसे प्यार करते But हैं, how much is our love burning within us? पर हमारा प्यार कितना जल रहा है आपके और पता। How was our first love? हमारा पहला प्यार कैसा था? Oh, we want more love from you, O God. हम और प्यार चाहते हैं आपसे, And O Lord, we want to keep the Spirit burning our lampstands. और हमारा आत्मा का दिवट जो है वो जलता रहे। When you परमेश्वर, come back for your church, जब आप लौट कर आए कलीसिया को लेने के लिए, we want to be white and holy. हम शुभ्र और श्वेत रहना चाहते, And so, पवित्र। Lord, prepare each one of our lives. और इसी रीति से हम सभी के जीवनों को तैयार कर, Bless the church. कलीसिया को आशीषित Make कर, it grow. उसे और चमकदार कर, Bless each and every one of our attempt, O God. हर एक को आशीषित कर And परमेश्वर। make this year 2026 और ये साल 2026 को to be a fruitful year of आप एक फलवंत वर्ष बना दे। In Jesus' name. यीशु मसीह के Amen. नाम से मांगते हैं, Amen. आमेन और आमेन।